عید بس آ ہی گئی ہے، قربانیاں ہوں گی، مٹن اور گوشت بانٹا جائے گا اور پھر پاکستان میں کھال کے ڈھیر جمع ہو جائیں گے۔ یہ کھال پھر ٹینریز کو بیچی جائے گی، پروسیس ہوگی، لیدر میں کنورٹ ہوگی اور ایکسپورٹ ہو جائے گی۔ پاکستان میں لائف سٹاک کی تعداد دنیا کی سب سے بڑے لائف سٹاک پاپولیشنز میں سے ایک ہے اور یہ سیدھا را مٹیریل میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے۔ پاکستان ہر سال تقریباً 13 ملین ہائڈز اور 37 ملین سکنز پروڈیوس کرتا ہے۔ فنش لیدر پروڈکشن اور ایکسپورٹس میں پاکستان دنیا کی ٹاپ 10 کنٹریز میں شامل ہوتا ہے۔ چائنا، برازیل، رشیا، انڈیا، اٹلی، ارجنٹینا، ساؤتھ کوریا، ترکی اور ویتنام کے ساتھ۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کا لیدر کا کنیکشن صرف جدید انڈسٹری تک لمیٹڈ نہیں ہے، یہ کنیکشن صدیوں پرانا ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن سے بھی پرانا۔ اس خطے میں ٹیننگ کے سب سے پہلے سائنس مہر گڑھ تک جاتے ہیں۔ بلوچستان کا وہ 9000 سال پرانا سیٹلمنٹ جہاں ایگریکلچر، لائف سٹاک، کرافٹس کے ساتھ ساتھ ٹیننگ کی بھی روٹس ملی۔ یعنی پاکستان دنیا کے ان ریجنز میں سے ایک ہے جہاں لیدر کا کام سب سے پہلے سٹارٹ ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ اپنے گھر میں کوئی جوتا یا والیٹ یا بیلٹ اٹھا کے دیکھیں، اس پہ زیادہ تر میڈ ان چائنا، میڈ ان اٹلی یا میڈ ان ویتنام کا ٹیگ ہوگا، میڈ ان پاکستان نہیں لکھا ہوگا۔ اور یہ کیوں ہے جبکہ ہمارے پاس لائف سٹاک بھی ہے، 700 سے 800 ٹینریز ہیں، لاکھوں کاریگر ہیں اور ایک ایسا را مٹیریل جس کے بارے میں دنیا کے ایکسپرٹس بولتے ہیں کہ کوالٹی میں صرف اٹلی کے پیچھے ہے۔ پھر بھی دنیا کے لیدر ٹریڈ کا آدھا بھی % ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ابھی پاکستان را لیدر ایکسپورٹ کرتا ہے کچھ چند ڈالرز پر ہائٹ پہ، اور اٹلی جیسے مالک وہ را لیدر خرید کے کو جیکٹ میں کنورٹ کر کے پھر $500 میں بیچ دیتے ہیں۔ اور یہی وہ گیپ ہے، ویلیوڈیشن اور برانڈنگ کی گیپ، جو ہم آج کے ایپیسوڈ میں ایکسپلور کریں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ۔ میرا نام آمنہ شیخ ہے اینڈ تھینک یو فار واچنگ انلاکنگ گروتھ۔ اس اپرچونٹی کو سمجھنے سے پہلے اس ویڈیو میں جو بھی انفارمیشن دی گئی ہے اس کا پورا ڈیٹا ڈیک ہماری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے pakistanaccounting.com/resources پہ، اور ہم ایک ویبینار بھی ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں جہاں ایکسپرٹ سے آپ ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں، اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم لیدر گڈس کی اپرچونٹی کو انلاک کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے گلوبل پکچر سمجھتے ہیں۔ لیدر گڈس کی گلوبل مارکیٹ تقریباً $270 بلین کی ہے اور یہ مارکیٹ ہر سال 6 سے 8% سے بڑھتی جا رہی ہے۔ لیدر گڈس انڈسٹری کے 4 سیگمنٹس ہیں۔ سب سے پہلا فٹ ویئر ہے، یہ گلوبلی سب سے بڑا سیگمنٹ ہے۔ 2024 میں پوری لیدر گڈس کی مارکیٹ کا 40% فٹ ویئر تھا۔ دوسرے نمبر پر گارمنٹس اور اپیرل ہے، یہاں ہسٹوریکلی پاکستان کی سب سے مضبوط ایکسپورٹس رہی ہیں۔ سال 2022 میں پاکستان کا گلوبل شیئر 8% تھا، لیکن یہ ایک ڈکلائننگ ٹریجیکٹری پر ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر ایکسیسریز اور اسمال گڈس آ جاتے ہیں، ان میں آپ کی والیٹس، بیلٹس اور بیگس شامل ہوتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ مارجن پر یونٹ کیٹیگری ہے اور ابھی یورپین لگژری ہاؤسز اس میں زیادہ تر ڈومینیٹ کرتی ہیں۔ فائنل سیگمنٹ ٹیکنیکل اور انڈسٹریل لیدر کا ہے، یہ آپ کی گاڑیوں کی سیٹ، آٹومیٹو، اپہولسٹری، فرنیچر، اسپورٹس اکوپمنٹ، سیٹلری ایٹسٹرا سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک والیوم ڈریون سیگمنٹ ہے جہاں ڈیوریبلٹی اور اسپیسیفکیشن سرٹیفکیشنز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ ان چاروں سیگمنٹس کے اپنے انڈسٹریل کلسٹرز ہوتے ہیں، اپنی اسکل ریکوائرمنٹ اور اپنی انٹری بیریئرز ہوتی ہیں، اور پاکستان میں ہر ایک سیگمنٹ کی ایکسپرٹیز موجود ہے۔ پنجاب سائڈ پہ پرٹیکولرلی سیالکوٹ، لاہور، قصور میں شوز، گارمنٹ، سپورٹنگ گڈس اور جیکٹس کی ایکسپرٹیز ہے۔ پھر کراچی کی انڈسٹریل ایریا سائٹ کرنگی، لیاقت آباد جیسے لیدر ایکسیسریز میں اسپیشلائز کرتے ہیں۔ یہاں کے کاریگر 3-4 پشتوں سے لیدر کے ساتھ کام کرتے آ رہے ہیں۔ ہسٹوریکلی لیدر گارمنٹس وہ سیگمنٹ ہے جہاں پاکستان کی سب سے گہری ایکسپرٹیز رہی ہے، لیکن سیڈلی یہی وہ سیگمنٹ ہے جہاں ایکسپورٹ سب سے تیزی سے گر رہی ہیں، 10 سالوں میں -4.8% کی کیگر سے۔ مطلب ہم ادھر ہی گراؤنڈ کھو رہے ہیں جہاں ہماری سب سے زیادہ ایکسپرٹیز ہے۔ اب ایکسپورٹس دیکھتے ہیں۔ ٹیکسٹائلز کے بعد لیدر پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ انڈسٹری ہے۔ پاکستان کے لیدر ایکسپورٹس ایک وقت میں 1.27 بلین تک پہنچ گئے تھے۔ یہ 2013-2014 کی بات ہے جب پاکستان کو EU کا GSP پلس اسٹیٹس ملا، لیکن اس کے بعد ایکسپورٹس گرتے آ رہے ہیں، آج رفلی $1 بلین کے قریب ہیں۔ اگر ہم صرف لیدر ایکسیسریز کے سیگمنٹ کو دیکھیں تو ایکسپورٹ کی کوانٹٹی 2022 میں 10 ملین یونٹس کی تھی اور 2024 میں گر کے 6.4 ملین یونٹس تک آ گئی ہے۔ اور یہ گراوٹ اس وقت ہے جب گلوبل لیدر گڈس کی مارکیٹ انکریز کرتی آ رہی ہے، یعنی دنیا نے لیدر خریدنا نہیں چھوڑا لیکن پاکستان نے ویلیو کیپچر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ گلوبل لیدر ایکسپورٹس میں پاکستان کا حصہ 0.5% سے بھی کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سلاٹر کا جو روایتی طریقہ ہے وہ لو کوالٹی ہائڈز پروڈیوس کرتا ہے جو اکثر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ پورے نہیں اترتے۔
टैनरीज के पास कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है और LWG सर्टिफिकेशन के बगैर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की प्रीमियम बायर्स तक हमारे हाइट्स पहुंचती ही नहीं है। और फिर ट्रेंड मैन पावर की भी कमी है, सर्टिफाइड मैन पावर की कमी है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद लेदर की कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है पाकिस्तान में, जहाँ डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ खास तौर पर स्ट्रेंथन किए जा सकते हैं। इन्हीं मसलों की वजह से पाकिस्तान का कोई ब्रांड और चैनल अभी तक नहीं बना सही से। लेकिन अब कुछ चीज़ें बदल रही हैं। पहला अनलॉक है ई-कॉमर्स का। आज सियालकोट का एक कारीगर शॉपिफाई पर अपना स्टोर खोल सकता है और डायरेक्टली जर्मनी में किसी को सीधा वॉलेट बेच सकता है। कोई एजेंट नहीं, कोई मिडलमैन, कोई फॉरेन बायर बीच में नहीं। फिर दूसरा अनलॉक है GSP प्लस। पाकिस्तान को EU मार्केट में लेदर बैग्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, जैकेट्स और शूज पर जीरो ड्यूटी मिलती है। दुनिया की सबसे बड़ी लेदर गुड्स मार्केट में ड्यूटी फ्री एंट्री बेसिकली। और ये एक एडवांटेज है जो कि इंडिया, चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश को नहीं मिलती। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कंडीशनल है। EU बायर्स लेदर वर्किंग ग्रुप यानी LWG की सर्टिफिकेशन और सोशल कंप्लायंस ऑडिट्स रिक्वायर करते हैं, और जब तक ये नहीं होंगे तो फिर GSP प्लस हमारे लिए सिर्फ कागजी फायदा बनता है। तीसरा अनलॉक है ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स जो कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं। पिछले 10 साल फास्ट फैशन का ट्रेंड चल रहा था, जिसमें हर 2 महीने बाद कपड़े चेंज हो जाते थे, ट्रेंड्स नहीं आ जाते थे और कपड़े रिप्लेस हो जाते थे। लेकिन अब यूरोप के रेगुलेटर्स खुले आम कह रहे हैं कि 2030 तक फास्ट फैशन आउट ऑफ फैशन होना चाहिए और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल, रिपेयरेबल, रिसाइक्लेबल और एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। कंज्यूमर्स भी अब ड्यूरेबिलिटी, रिपेयरेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं। लेदर और खासतौर पर पाकिस्तानी लेदर गुड्स के पास इधर एक नेचुरल एडवांटेज है। जिधर फास्ट फैशन में कपड़े 1-2 महीने बाद पुराने लगने लग जाते हैं, लेदर की एज होती है, मैच्योर होती है, उससे पटीना डेवलप होता है। तो एज टाइम गोज लेदर बेहतर होता जाता है। अगर हम सस्टेनेबिलिटी के एंगल से देखें तो पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री पाकिस्तान की मीट इंडस्ट्री का पूरा 100% बाय प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स टैनिंग को लेके एनवायरमेंटल इश्यूज तो हैं, स्पेशली क्रोम टैनिंग की जो केमिकल वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर हम वेजिटेबल टैनिंग की तरफ आएँ तो ये एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। वेजिटेबल टैनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि ट्री बार्क और नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स यूज करता है, और ये इनफैक्ट एक क्राफ्ट ट्रेडिशन है जो कि इस खित्ते में महर घर से चलती आ रही है। और फिर वेजिटेबल टैन लेदर प्रीमियम प्राइसेस भी कमांड कर सकती है, नॉर्मल लेदर से 3 या 5 गुना ज्यादा पैसों में बिक सकती है। तो अगर सोर्सिंग रिस्पॉन्सिबली ट्रेसेबली किया जाए, टैनिंग को ज्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली किया जाए, प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो, तो लेदर फास्ट फैशन की डिस्पोजेबल मॉडल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बन सकता है। अब नंबर्स पर आते हैं, प्रैक्टिकली इस बिजनेस में कैसे एंटर करें। पहला कदम ये है कि आप डिसाइड करें आपने लेदर के कौन से सेगमेंट में एंटर करना है, गारमेंट्स, ग्लव्स, शूज या एक्सेसरीज। जब आपने सेगमेंट चूज कर लिया है तो पहला काम ये है कि आप सप्लायर ढूंढें। एक नहीं, आप कई मुख्तलिफ जगहों से सैंपल्स बनवाएं, फिर क्वालिटी चेक करवाएं, स्पेसिफिकेशंस पुश करें, और अगर आपने ओवरसीज मार्केट के लिए बनाना है तो सर्टिफिकेशंस भी इंश्योर करें। परसिस्टेंस और कंप्लायंस, ये दोनों चीजें मिलकर ही एक ब्रांड को बनाती हैं। इस एपिसोड के लिए हम आपको एक्सेसरीज का घर से शुरू करने वाला मॉडल दिखाएंगे, जिसमें आप वॉलेट्स, कीचेन्स या स्मॉल बैग्स बना के ऑनलाइन बेच सकते हैं। पहले आते हैं केपेक्स पे। आपको सबसे पहले सैम्पलिंग करनी होगी। इसमें आप 3 से 5 मैन्युफैक्चरर्स से अपने स्पेक्स के मुताबिक सैंपल्स बनवाएं और फिर क्वालिटी टेस्ट करवाएं, और फिर कई राउंड्स के बाद आप फाइनल प्रोडक्ट लॉक कर लें। इसका खर्चा रफली आपको 3 लाख का आ सकता है। फिर आते हैं ब्रांड डेवलपमेंट पे। नाम, लोगो, विजुअल आइडेंटिटी के लिए आप 50,000 से 1.5 लाख लें। प्रोडक्ट फोटोग्राफी यानी जो हीरो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोफेशनल शूट करवाना, उसके लिए तकरीबन 50 से 1 लाख रुपए रख लें आप। फिर शॉपिफाई स्टोर डोमेन के लिए 30,000 से 60,000 रुपए। पैकेजिंग, ब्रांडेड बॉक्सेस, टिश्यू पेपर्स, टैग्स एक्सेट्रा, उसके लिए 50,000 से लाख रुपए रख लें। फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए 30,000 से 60,000 रुपए का बजट कर। तो फिर टोटल आपका वन टाइम स्टार्टिंग कॉस्ट तकरीबन 4 लाख से 11 लाख के दरमियान आ सकता है, यानी अराउंड $1,500 to $4,000। अब हम ऑपेक्स पर आते हैं, यानी वो खर्चा जो हर महीने रिपीट होता है। सबसे पहले इन्वेंटरी रिप्लेनिशमेंट। जैसे जैसे स्टॉक बिकता है तो आपको मैन्युफैक्चरर को नए ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, तो इसके लिए आप 1 लाख से 2.5 लाख रुपए का बजट कर लें। पैकेजिंग मटेरियल की रीस्टॉकिंग के लिए 20,000 से 50,000। फिर कोरियर कॉस्ट, लोकल डिलीवरीज के लिए TCS, लेपर्ड्स एक्सेट्रा, इसके लिए आप 30,000 से 80,000 रुपए बजट कर लें। डिजिटल मार्केटिंग यानी मेटा, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स के लिए आप 60,000 से 1.5 लाख रुपए बजट कर लें। और फिर बेसिक एडमिन कॉस्ट जैसे कि प्लेटफॉर्म फीस, डोमेन, ईमेल वगैरह, उसके लिए भी आप 15,000 से 30,000 रुपए बजट कर लें। तो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर आपका 2 से 5 लाख के दरमियान आ सकता है। यूनिट इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरर आपको वॉलेट 1,200 से 1,800 रुपए में देगा। आप वही वॉलेट D2C ब्रांड के जरिए पाकिस्तान में 2,500 से 4,000 रुपए में बेच सकते हैं,
ग्रॉस मार्जिन 35 से 55% का। और अगर आपने वही वॉलेट शॉपिफाई पर अमेरिका या यूरोप बेचना है तो आप आसानी से 35 या $55 तक बेच सकते हैं। लैंडिंग कॉस्ट आपकी रफली $12 से $18 होगी और ग्रॉस मार्जिन 55 से 70% हो सकती है। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ एंट्री बैरियर कैपिटल नहीं है, ब्रांड बनाना है। और पाकिस्तान में अब ये काम होने लग गया है। 3-4 ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि दोनों डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल स्टेज पे बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि जाफरजीज पाकिस्तान के सबसे पुराने लेदर ब्रांड्स में से एक है, जो कि हाथ से बनी हुई वॉलेट्स, हैंडबैग्स और ट्रैवल एक्सेसरीज बेचते हैं। उनका खुद का कहना है कि बायर्स अब मेड इन पाकिस्तान टैग डिमांड करते हैं। फिर है फिलासी, एक लंदन बेस्ड पाकिस्तानी ओन ब्रांड जिन्होंने मार्च 2026 में पेरिस फैशन वीक पर डेब्यू किया था। पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स की हाथ से बनी हुई लेदर जैकेट्स ये लोग बेचते हैं और हर जैकेट मेड टू ऑर्डर बनता है। ब्रांड का नाम फिलासी के क्राफ्ट से इंस्पायर्ड है, जो कि सिंध और बहावलपुर की तरफ हैंड टेक्सटाइल्स का एक हुनर है। ये ब्रांड सिर्फ जैकेट नहीं बेच रहे, ये पाकिस्तान की क्राफ्ट की हेरिटेज की कहानी बता रहे हैं इंटरनेशनल स्टेज पे। फिर हैवर्ड स्मिथ एक कराची बेस्ड एक्सेसरी स्टूडियो है, जो कि लोकली और इंटरनेशनली कनाडा में भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इन्होंने लेदर क्राफ्टिंग को एक कंज्यूमर एक्सपीरियंस बनाया है। ये वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं जहां आप खुद अपना वॉलेट या बेल्ट बना सकते हैं। ये मॉडल आपको सिखाता है कि लेदर ब्रांड जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट ही बेचे, वो क्राफ्ट की अप्रिसिएशन को भी बेच सकता है। फिर वर्क एक पाकिस्तानी हैंडबैग्स का ब्रांड है जो ग्लोबल फैशन कॉन्वर्सेशंस में अब एंट्री करने लग गया है। रिसेंटली वर्क की बैग्स मिरल स्ट्रीप और एन हैथवे के इस्तेमाल में फोटोग्राफ किए गए थे। ये स्टोरीज आपको एक चीज बताती हैं, जो लोग सिर्फ प्रोडक्शन नहीं डिजाइन में भी इन्वेस्ट करें और ब्रांड की स्टोरी को बनाए और फिर सर्टिफिकेशंस भी हासिल करें, वो ही वैल्यू चेन में ऊपर जाती जाएंगी और ज्यादा वैल्यू कैप्चर कर पाएंगी। तो ये अपॉर्चुनिटी है किसके लिए? पहले डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो मेटा पर एड्स और शॉपिफाई और इंस्टाग्राम को मास्टर कर चुके हैं। उन्हें फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, वो सियालकोट और कराची में सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ब्रांड बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे लेदर मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, जिनकी फैमिलीज में पहले से मैन्युफैक्चरिंग चलती आ रही है। 20 साल से ओईएम एक्सपोर्ट्स करते आ रहे हैं, सप्लाई चेन उनके पास है, क्वालिटी भी है, एक्सपोर्ट रिलेशनशिप्स भी बनी हुई है, सिर्फ उनको ब्रांड बनाना है। फिर तीसरे नंबर पे पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए, जो यूरोप, यूके या यूएस बेस्ड हैं, जो पाकिस्तान की मार्केट को भी समझते हैं और वेस्टर्न मार्केट को भी समझते हैं। वो ब्रांड की ऑथेंटिक स्टोरी वहाँ बेच सकते हैं और प्रोडक्शन यहाँ करवा सकते हैं, जीएसपी प्लस का पूरा फायदा उठा सकते हैं। फिर चौथे नंबर पे वो क्रिएटिव्स या डिजाइनर्स के लिए, जो 3 से 8 कारीगरों के छोटा सा आर्टिसन स्टूडियो स्टार्ट करके मेड टू ऑर्डर मॉडल इंस्टाग्राम पे बेच सकते हैं या शॉपिफाई पे बेच सकते हैं। तो ये एक लो इन्वेंटरी, रिलायबल, वायबल बिजनेस बन सकता है। सदियों से पाकिस्तान दुनिया की लेदर फैक्ट्री बनकर बैठा है। हम रॉ मटेरियल, क्राफ्ट, कारीगर, लेबर सब कुछ सप्लाई करते हैं और फिर इंटरनेशनल ब्रांड्स मार्जिन ले जाते हैं। इसलिए वैल्यू क्रिएशन के साथ साथ पाकिस्तान के लिए ब्रांडिंग और स्टोरी टेलिंग बहुत ज़रूरी है। लेदर हमारे पास है, कारीगर हैं, हुनर है, हमें सिर्फ ब्रांड चाहिए। आज पाकिस्तानी ब्रांड ई कॉमर्स के जरिए सीधा कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। हमें ईयू का जीरो ड्यूटी एक्सेस है, उसका फायदा भी उठाना चाहिए। और फिर दुनिया भर में कस्टमर्स हैंडक्राफ्टेड असली और ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स तो ढूंढ ही रहे हैं। तो फिर असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ लेदर सप्लाई करता रहेगा या फिर अपनी कहानी खुद ऑन करके ब्रांड बेचेगा? शुक्रिया और खुदा हाफिज।